أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں استاذہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی عظمیٰ ناصر، آپ نے جو کل کلاس ہوئی تھی وہ مس کی تھی غالباً، تو آپ نے اس کی ریکارڈنگ، اس کی سلائڈ وغیرہ دیکھ کے سمجھی تھی چیزوں کو؟ جی جی بالکل سارا ہاں جی سمجھ لیا انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے اپنے رول نمبرز کے حساب سے آئیں۔ گلشن شجاع صاحبہ، آپ کا رول نمبر آپ کو ملا ہے، اور نسیم اختر۔ السلام علیکم گلشن شجاع۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، لیکن بہت ڈسٹربنس ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کی طرف سے کوئی ایشو ہوگا۔ باجی میرے موبائل کی آواز بہت سلو ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے میں وہ یوز کرتی ہوں چلیں مائک۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے تو بات صحیح آتی ہے مجھے، اس لیے شاید کچھ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال، کوئی کنفیوژن؟ باجی میں ایک بات جی جی باجی وہ یہ ہے کہ اب ہم جن شروع کی ہے اس کے متعلق جتنا بھی ہم نے پڑھا، لیکن پوری طرح کنفیوژن دور نہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ 4 پارٹ جو ہیں وہ آگے استعمال میں آتے رہتے ہیں، اس لیے سسٹم کو کلیئرلی فائنڈ آؤٹ کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، شاید یہ مذکر ہے، مونس ہے، وہ اسی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، شاید جو ہے وہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی جو چیز ہمارے سامنے کہا گیا ہے وہ ہم فوری طور پہ ڈیفائن کر سکیں، اور اس کے لیے جو پیٹرن بتایا گیا ہے اس کے حساب سے ہمارا کلیئر کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی لفظ ہے اس کو سب سے پہلے کن کن بیس پہ دیکھنا ہے، تو تاکہ زمین کے الفاظ بھی آئیں اور دوسرے بھی آئیں تو ہم ڈیفائن کر سکیں۔ تو اگر یہ کنفیوژن رہے تو آگے چلتے جائیں گے تو وہ پیچھے سے ہمارا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکے گا، تو ہم پھر تو اس لیے میں نا اس کو مزید تھوڑا سا کلیئر کیا جائے۔ جی آج انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے نا، تو اور بھی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جی وہی میں کہتی ہوں کہ جب ہم ہر بات کو مکمل طور پہ ایک ایک چیز کو آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے
और फिर कंफर्म करें कि फिर आपको पता चले कि हमारी समझ में ये बात आ गई है या नहीं आ गया। हम्म। इसीलिए गुलशन मैं ठीक शुजात कह रही साहिबा, मैं एक एक स्टेप के बाद आप लोगों से पूछती रही हूँ कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है या नहीं, है ना। हूँ? और दूसरी बात ये कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि मुज़ाकरा ग्रुप में अपनी चीजों को कुरान पाक के हवाले से जो आप पढ़ रहे होते हो रोजमर्रा में, उस चीज को मुज़ाकरा ग्रुप में डिस्कस करें। अब देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये बात आपको समझा सकूं, लेकिन वही बात है कि कुछ कोशिशें आपको, आप लोगों की तरफ से मुझे दिख नहीं रही हैं। ठीक है ना। तो जब एक साइड से कोशिशें होंगी और दूसरी साइड से नहीं होंगी तो फिर बात बनेगी नहीं। अब आप देखें कि आज भी जो हमारी आयत आपके सामने आएंगे उसमें स्टार्ट से जो हमने इसको पहचानने की जो अलामतें, जो सारी चीजें कही हैं, अब वो सब डिस्कस होंगी आज दोबारा। तो मेरी तो यही कोशिश है कि रिवीजन के साथ हम नई चीजें सीखें। ठीक है ना। लेकिन जब तक आप लोग उस चीज को मुज़ाकरा ग्रुप में डिस्कस नहीं करेंगे, मेरे इल्म में ये बात नहीं आ सकती कि आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। इसीलिए मुज़ाकरा ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि जहाँ पर आप लोग इजीली एक दूसरे से डिस्कस करें, अपनी चीजें जो आप लोगों को समझ आ रही हैं उसको भी बताएं, ताकि जहां पर मैं देखूंगी कि कंफ्यूजन है तो मैं वहां पे क्लियर कर सकूंगी। ठीक है जी, बाकायदा क्लास का आगाज करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि हुमा, हुम और हुन्ना, ये जो हैं इनसे पहले अगर जेर आ जाए या फिर याय साकिना आ जाए तो ये बिहिम, जैसे बी बा हरफ बा जेर है तो ये बिहिम हो जाएगा। सही है। बी हिमा हो जाएगा, बी हिन्ना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों से पहले जेर है। अगर इन तीनों से पहले याय साकिना आ जाएगी तब भी ये हुमा, हुम और हुन्ना से हिमा, हिम और हिन्ना बन जाएंगे, अगर आप लोगों की के जहन में ये बात हो। ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि वाहिद मुजक्कर की जो जमीर होती है हु जमीर। ठीक है। अगर आप लोगों को जमायर का चार्ट याद हो, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं गोलताक की अहमियत को। आज हम डिस्कस करेंगे कि वाहिद मुजक्कर की जो जमीर है वो बहुत तरीके से लिखी जाती है। ठीक है। कभी ये सीधा पेश के हिसाब से लिखी जाती है, कभी ये उल्टा पेश के हिसाब से लिखी जाती है, कभी जेर होती है इसके नीचे और कभी खड़ी जेर होती है। इसके मुख्तलिफ शक्लों को आप इस वक्त स्क्रीन पर देखेंगे। स्लाइड आगे करें। ये इस वक्त स्क्रीन पर इसकी मुख्तलिफ शक्लें आपके सामने हैं। आप लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है इन शक्लों का? क्या आप लोग सब जाग रहे हैं? जी मैम, जाग साका रहे हैं। जी जी जी, आपने क्या साका कहा है? मैंने कहा कि ये जो शक्लें, मुख्तलिफ शक्लें आपके सामने नजर आ रही हैं, वाहिद मुजक्कर, जी इसको कहेंगे वाहिद मुजक्कर की जमीर। ठीक है। अभी हम इस जी चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि ये गायब है, हाजिर है, गायब क्या होती है, हाजिर क्या होती है। अभी वो जी। हमारा चैप्टर नहीं है। सिर्फ इसकी हम्म। मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि कुरान पाक पढ़ते हुए कि इसकी इस तरह की शक्लें आपके सामने आती हैं? जी जी, जी जब हाँ पढ़ते हैं उसको तो आप गौर जी करें साका। अल्लाह। जी जी। आज हम इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे कि इसकी क्या वजूहात है। मतलब क्या ऐसा होता है जब हम्म। ये पेश पे जाती है, जब ये खड़ी जेर पर जाती है, इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। जी जी, मैं थोड़ा सा, हाँ अब जी, यहाँ, अगर आप इजाजत दे तो, जैसे बी ही हम पढ़ती है ना, बी ही तो है, जी तो जी, हा का मतलब उल्टी वो खड़ी खड़ी जेर। जी, तो जी साथ उसके लग जाता है। हाँ, वो तो मीनिंग। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात पहले तो क्लियर कर दूं कि ये जिस शक्ल में भी होगी ना, जी इसका जी। मीनिंग एक ही जाएगा। ठीक है। जी मतलब जी। ये वाहिद मुदक्कर की ही जमीर रहेगी, चाहे हम्म। खड़ी जेर हो, चाहे सीधी जेर हो, चाहे उल्टा पेश हो, चाहे सीधा पेश हो। अच्छा। ठीक है ना।
हाँ, صحیح इसके मतलब पे कतई तौर पे कोई फर्क नहीं आता। صحیح ये सिर्फ इसके ٹھیک लिखने के जो स्टाइल्स हैं उनको आज हम देखेंगे कि جی उल्टा पेश उस वक्त होता है कि जब इस जमीर से पहले हर्फ पर अगर पेश या जबर हो। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं कि अगर किताबू यानी कि हू जमीर से पहले पेश है हमारे पास, ठीक है, तो ये उल्टा पेश में चेंज हो जाएगी वाहिद मुजक्कर की जमीर। और अगर इससे पहले हर्फ पर जबर हो तो भी ये उल्टे पेश में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि इसके माना पे कोई फर्क नहीं रहेगा होगा, ये होगी वाहिद मुजक्कर की ही जमीर। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है कि क्या हो कि ये हमारे पास नीचे जेर में आ जाए। तो इस जमीर से पहले अगर याए साकिना हो तो जमीर पर जेर आएगी। यहाँ पर जबर लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो इस जमीर से पहले अगर याए साकिन हो, जहन में रखिएगा सिर्फ और सिर्फ याए साकिन। हमारे सामने मिसाल थी जालिकल किताबुल ला रैब फीह की, ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा फी में हू जमीर से पहले याए साकिना है, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास सीधी जेर आई थी। और किताब बई ही, यहाँ पे भी आप देखें कि वाहिद मुजक्कर की जो जमीर है उससे पहले याए साकिना है, तो ये नीचे जेर आएगी। ये दो चीजें हमारे पास हुई, यानी कि अगर वाहिद मुजक्कर की जमीर से पहले पेश या जबर हो तो उल्टा पेश होगा वाहिद मुजक्कर की जमीर पर। अगर उससे पहले याए साकिना हो तो सीधी जेर होगी। और अब हम देखेंगे कि खड़ी जेर कैसे होगी। खड़ी जेर उस वक्त होगी जब इस जमीर से पहले जेर हो। जैसे अभी उस्मा नासिर ने कहा था कि बिही, है ना। हाँ, और हमने बहुत जगह पर इस को देखा भी था, पहचान भी की थी। तो हमने देखा था कि जब भी बात जेर होता है तो ये खड़ी जेर के साथ हमारे पास वाहिद मुजक्कर की जमीर आती है। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये क्यों ऐसी जमीर जो है जो कि सीधे पेश के साथ होती है, ये उल्टे पेश के साथ कब आती है, खड़ी जेर के साथ कब आती है, और सीधी जेर के साथ कब आती है। इसके अलावा अब इसकी जो बुनियादी शक्ल है जो हमारे सामने हमेशा होती है, यानी कि सीधे पेश के साथ, तो यहाँ पे नोट कर लें कि इस जमीर से पहले अगर अलिफ आ जाए या फिर कोई भी हर्फ या साकिना के अलावा साकिन हो तब ये सीधी पेश पर आ जाएगी। मैं फिर दोहराती हूँ कि अगर वाहिद मुजक्कर की जमीर से पहले जबर हो या पेश हो तो वाहिद मुजक्कर की जमीर के ऊपर उल्टा पेश आएगा। सही। वाहिद मुजक्कर की जमीर से पहले अगर याए साकिना हो, सिर्फ याए साकिना, तो वाहिद मुजक्कर की जमीर के नीचे सीधी जेर होगी। ठीक। अगर वाहिद मुजक्कर की जमीर से पहले आपके पास जेर हो किसी हर्फ पर तो वाहिद मुजक्कर की जमीर के नीचे खड़ी जेर आएगी। और इन सबको अगर लेके साइड पर कर दें तो फिर वो उल्टा पेश होगी, जो कि हमारे पास अगर वाहिद मुजक्कर की जमीर से पहले अलिफ हो या वाहिद मुजक्कर की जमीर से पहले याए साकिना के अलावा कोई भी हर्फ साकिन हो तो वो सीधी पेश पर आएगी। क्या यहाँ तक आप सब लोगों को कोई पॉइंट है जो समझ में ना आया हो? देखिए, ये सारी चीजें याद करने की नहीं है, ये हमने एक मसला था उसका हल निकाला, उसको देखा, उसको समझा, ठीक है। बस जहन में ये रखिएगा कि इन सारी शक्लों के बावजूद वाहिद मुजक्कर की जो जमीर है उसका माना चेंज नहीं होता, इस वो वाहिद ही रहेगी, वो मुजक्कर ही रहेगी, ठीक है। तो इसका माना कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन हम कभी पजल हो जाते हैं कि यहाँ पे तो इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे तो उस तरह लिखा हुआ है, तो क्या इससे मीनिंग पे फर्क पड़ रहा है? क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि एक सिंगल जेर जबर से भी माना चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिंगल जेर जबर सिर्फ इसके पहले वाले हरूफ की हरकत के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है।
اس سے اس کا کوئی معنی چینج نہیں ہوگا. یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو بات؟ کوئی سازا سوال؟ یہ جی جی. میرا سوال. سازا پہلی دو واحد ضمیر کو دوبارہ ڈیفائن کر دیں. کس چیز کو؟ جو آپ نے پہلی دو ضمیر بتائی نا، واحد واحد مذکر ضمیر کی جو پہلی دو ہا بتائیں، آپ اس کو دوبارہ ڈیفائن کر دیں. اچھا، پہلی ضمیر کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ کب الٹا پیش آتا ہے. واحد مذکر کی ضمیر کے اوپر الٹا پیش کب آتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ الٹا پیش اس وقت آئے گا جب اس سے پہلے حرف پر الٹا پیش سیدھا پیش ہوگا یا پھر زبر ہوگی. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ جی باقی کلیئر ہے مجھے الحمدللہ. جی. اور پھر اس ضمیر کے نیچے سیدھی زیر کب آئے گی؟ جب اس سے پہلے یا ساکنہ ہوگی. میں بتاتی ہوں استاذہ، باقی مجھے کلیئر ہے. ہا کے نیچے سیدھی تب آئے گی جب اس سے پہلے یا ساکنہ ہو تو اس ضمیر پر سیدھی زیر. زیر آئے گی، سیدھی زیر. جی اور کھڑی زیر تب آئے گی واحد مذکر کہ اس ضمیر سے پہلے جب کسی حرف پر زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آئے گی، جیسے بالکل کتابی. بالکل بالکل ہا کے ایسا ہی. اوپر جو سیدھا پیش ہے وہ تب ہوں، آئے گا اس ضمیر سے پہلے اگر الف آ جائے یا پھر یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن آ جائے تو سیدھا ہوں، پیش آئے گا، جیسے کتاب ہوں، من ہوں. ہوں. تو بس پہلا پوائنٹ کتابا یہاں. ہوں. اچھا، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھیں کتابا ہوں، کیونکہ ہم نے ابھی کہا نا کہ الف آ جائے تو ہمیں با کو ذرا کھینچنا پڑے گا نا. کتاباہ من ہوں. ہوں، بالکل. ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی یہ ساری شکلیں آپ کو؟ الحمدللہ. چلے جی، یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا جو میں نے کہا کہ کافی بار لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہلو. یہ آواز آ رہی ہے؟ اوکے اوکے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر کچھ آیات ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آیات کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مصحف اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ عثمانی مصحف ہے. یعنی کہ یہاں پر ہمیں وہ جو وہ ضمیر ہے واحد مذکر کی، اس کی مختلف شکلیں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ذرا فوکس کیجئے گا. اگر کوئی اس وقت مصحف لا سکتا ہے جو بر صغیر میں جو مصحف ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. اچھا، کیا ہماری مینجمنٹ کے پاس ایسا ہے کہ وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 14 کو اس مصحف سے لے کر آئے؟ جی جی کیا انشاءاللہ. ایسا بھی پاسبل ہوگا؟ جی جی انشاءاللہ. جی، تاکہ ہم اس چیز کو بھی آج پریکٹس کر لیں. جی، یہاں پر پاسبل ہو رہا ہے لانا؟ جی جناب. سب سے پہلے میں
रोल नंबर 1 इस वक्त हमारे पास। जी रोल नंबर 1, जी अच्छा आपके सामने आयत आयत मौजूद है। जी अब इस आयत में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अस्मा का तयन करना है कि इस आयत में अस्मा कौन कौन से हैं, और आपने उस लफ्ज को इस्म क्यों कहा है, आप क्यों समझ रही हैं कि ये इस्म है, वो वजह जो रीजन है वो भी बताइए। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें जी। जी अम्म, अल्लाजीना अच्छा, वैसे ये आयत नंबर इसम 15 है, 15 है, 14 है? नहीं, ठीक है जी, ठीक है। 14 है जी जी, जी आयत नंबर 14 है। 14 है ना? जी जी, सही है, अच्छा 14। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी 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 अनाब अल्लाजीना दोबारा। क्योंकि ये इस अस्मा मौसूला है। बिल्कुल माशाल्लाह। और हम्म, अम, अज़न क्योंकि तनवीन है। हम्म हम्म, जी मिम्मा जनाब। जी मिम्मा भी मिम्मा भी इसम है। और मीसा का मिम्मा हम मिम्मा को आपने इसम क्यों करार दिया? क्योंकि ये ज़माइर की लिस्ट में आते थे। मिम्मा जमाइर की लिस्ट में आता है, आप श्योर? मुझे मुझे याद नहीं है इतना, या फिर नहीं नहीं, मिम्मा नहीं है, जमाइर की लिस्ट में माँ कहीं पर भी नहीं है, ना मिम्मा जी नहीं है, ठीक है। तो मीसा का हम के हम बिल्कुल, जबरदस्त। और बैना हम के का हम बिल्कुल। और युनब्बिउहुम का हम और अल्लाह जी बीमा भी क्या नहीं माँ जमीर सॉरी कोई नहीं नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी इंशाल्लाह देखें स्लाइड में से जो और चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं ना, उनको क्लास से पहले एक नजर देखा करें जरूर, कि आपके पास जमाइर का चार्ट मौजूद है, ठीक है, तो उसको एक नजर लाजमी देख लिया करें, क्योंकि अब अपना हमारा जो प्रैक्टिस पैटर्न है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम हर चीज दोबारा से फ्रॉम द फर्स्ट क्लास हम हर चीज को लेकर चल रहे हैं, हम हर चीज को देख के चल रहे हैं। जब भी आयत हमारे सामने आएगी, हमारा प्रैक्टिस पैटर्न यही रहेगा कि हमने जमाइर भी देखने हैं, हमने अस्माए मौसूला भी देखने हैं, हमने अलिफ लाम वाले भी देखने हैं, हमने तनवीन वाले भी देखने हैं, और हमने वो भी अस्मा देखने हैं जिनके माना हमें आते होंगे, ठीक है। जी जी इसके जी अलावा कोई आपको मुझे तो नजर आ रहा लग है? जी मुझे तो लग रहा है और मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे बिही में जमीर जो अभी हमने डिस्कस की है इसकी मुख्तलिफ शक्लों के एतबार से, तो ये भी तो जमीर है ना वाहिद मुजक्कर की, जी है ना। और अखर ना में ना जमीर भी है हमारे पास, जी ठीक है। अल अदावता, इसमें अलिफ लाम है। जी अल बगदा, और इसमें ये अलिफ लाम है।
القیامہ فأغرينا، ضمیر کیا ہے؟ اس میں نون الف زبرنا کی جو ضمیر ہے وہ موجود ہے. چلیں اگر اگر آپ فیل کے ساتھ جو ضمائر یوز ہوتے ہیں اس کو نہ بھی بولیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم اتنی زیادہ پریکٹس میں نہیں آئے ہیں، لیکن آپ نے ینبئہم میں اچھے طریقے سے اس کو نکالا تھا. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ دو ضمائر بھی بتا دی. یہاں تک کلیئر ہے کہ آپ نے کس طرح اسما کو پہچانا ہے؟ جی جی اناب، اب آپ کے پاس ہم دو ورڈز لے کر آتے ہیں، اس کے معنی بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ بتائیں گی کہ یہ جنس کے اعتبار سے ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے جی ہماری وہ والی سلائڈ لے آئیں جس میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں وہ ٹیبل بھی شو کرنا ہوگا. یہ دیکھیں ہمارے پاس آپ کے لیے دو ورڈ ہیں، العداوۃ اور القیامہ. ٹھیک ہے، ان کے میننگ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے، اب ہم آپ کے سامنے جنس کا جو ٹیبل ہم نے کل ڈسکس کیا تھا وہ ڈسپلے کر رہے ہیں. پہلے آپ عداوت العداوتا کو دیکھیں کہ وہ جنس میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اگر آپ کہتی ہیں کہ مذکر ہے تو بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کیوں، اور اگر آپ کہتی ہیں کہ مؤنث ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کیوں. جی عداوت مونس ہے اور یہ غیر حقیقی ہے، اور اس میں ہوں سے یہ علامتی ہے کیونکہ یہ گولدہ میں ختم ہوتا ہے. بالکل ماشاء اللہ. اور دوسرا ورڈ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو یاد ہے؟ القیامہ، جی جی اس کا میننگ کیا تھا مجھے بھول گیا. ان کو میننگ بھی دوبارہ دکھایا جائے. آپ کو میننگ شو ہو رہا جی ہے؟ جی اب آپ بتائیں. جی یہ بھی مونس ہی ہے اور ہوں سیم ہی علامتی، بالکل کیونکہ بالکل ماشاء اللہ. اب آپ کو اس طرح کی پریکٹس کرنے کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی چلے ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا. کوئی سوال ہے آپ سے، آپ کا اس سے ریلیٹڈ؟ جی نہیں، جنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کسی اور باقی چیز سے وہ جو ریلیٹڈ؟ ابھی آپ نے میں نے ابھی نوٹ نہیں کیا کیونکہ میں سن رہی تھی، اس لیے جی تھوڑی جی کنفیوز تھی اس کے بارے میں. جب میں نوٹ مختلف کروں گی شکل تو جو تھی. پھر جی ہاں کی ہاں ابھی آپ دیکھیں آپ کے پاس بھی آیا ہے نا، جی تو اس کے نیچے ہم نے جو ضمیر ہماری تھی واحد مذکر کی وہ ضمیر، اس کے نیچے ہم نے کھڑی زیر دیکھی تھی. جی ٹھیک ہے نا، تو کھڑی زیر کیوں تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے با کے نیچے سیدھی زیر تھی. جب کبھی وہ ضمیر کے پہلے سیدھی سے زیر آ جائے گی نا تو وہ ضمیر کے نیچے ہمیشہ کھڑی زیر آئے گی. جی اوکے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی نا آپ کی آیات سے. جی جی اب ٹھیک تھوڑی ہے، پھر کلیئر ہوا انشاءاللہ جس طرح جی اب جیسے جیسے آئے گی نا چیزیں ہم دیکھیں گے. آپ بھی آیت میں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کی آیت میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے، تو وہ انشاءاللہ آپ کا پکا ہو جائے گا. ہے. جی اوکے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. بہت شکریہ. رول نمبر 2. اچھا میں یہاں پر چاہوں گی کہ المائدہ کی آیت نمبر، چلیں ٹھیک ہے اگر نہیں پاسبل تو چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پہ المائدہ میں کوئی بھی ایسی ہو ضمیر کی کوئی بات نہیں ہے جو ہم ڈسکس کریں گے. جو ہماری سلائڈ بنی ہوئی ہے المائدہ کی آیت نمبر 9 کی، ہم اسی کو ڈسپلے کر دیتے ہیں.
आयत नंबर 9 अल माइदा की वअदल्लाहु लजीना वाली आयत। जी रोल नंबर 2, आपसे गुजारिश है जी कि आप हमें ये बताएं कि इस आयत में आपको कौन से अल्फाज इस्म मालूम हो रहे हैं और क्यों। ठीक है मैम। अल्लाह, हम्म। अल्लज़ीना मौसूला, बिल्कुल। अस्सॉलिहात, अलिफ हम्म। लाम, बिल्कुल। हुम जो है वो ज़मीर है, बिल्कुल। मग़फ़िरतुन तनवीन है, बिल्कुल। अजरुन तनवीन है, हम्म। अज़ीमुन तनवीन है। माशाल्लाह। अब देखते हैं कि आपके पास कौन से अस्मा आते हैं जिसको आपने हमें बताना है कि वो जिन्स के एतबार से मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। ठीक है। ठीक है मैम। जी, सबसे पहला वर्ड आपके पास है मग़फ़िरतुन। मग़फ़िरतुन जो है ये अलामती मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में जो है वो ता है, गोलता। और इसका जो ये हकीकी नहीं है जी, ये हकीकी नहीं है क्योंकि ये इसका मायने मग़फ़िरत है, इसलिए फिर बिल्कुल। हम अलामत हकीकी, में जाके हकीकी क्या होता फिर, मतलब क्या चीज होती हकीकी जिसके यानी बारे में कि हम ये अगर कहते इसका, थे कि हकीकी। हम्म। हाँ जी, इसका जिंदगी मतलब उलट मौजूद होता, जैसे मर्द औरत, मुज़क्कर। यानी जी, यानी कि मुज़क्कर मोनस जिसका मौजूद होता है ना, इसका कोई जी मुज़क्कर बिल्कुल। मोनस। सही सही, ठीक है। अब आपके पास दूसरा वर्ड है अजरुन। अजरन, अजरन जो है क्या। वो वैसे तो ये हकीकी मोनस नहीं है क्योंकि इसका कोई बिल्कुल। मुज़क्कर, तो इसको हम्म। हम जाके देखेंगे मोनस वाली साइड पे, तो मोनस में हम हम्म। देखेंगे कि अलिफ है या समाई है। तो बिल्कुल। अलामत में हमारे पास ता नहीं है, गोलता। और सलाम जी गोलता। समाई में जी जो है वो ये ना हवाओं का नाम है, ना आग का नाम है, ना सूरज का नाम है, ना चांद। एक तो ये हम इसको कहेंगे कि ये मुजक्कर है। बिल्कुल, क्योंकि ना ये मुतफर्रिक अस्मा में हमारे पास आ रहा है जिसमें सूरज, जी जमीन, आसमान, जंग, जान। ठीक है। और ना ये हवाओं, शराबों, मुल्कों, जुफ्तादा किसी का भी नाम नहीं है। सही ना, जो जी ग्रुप्स हमने डिस्कस किए थे ये उसमें भी फॉल नहीं कर रहा, मतलब कि ये हमारी मोनस की पिक्चर में फिट बैठ ही नहीं रहा। सही। तो जी हम इसको फिर कौन से बॉक्स जी में डालेंगे, मुज़क्कर के। मुजक्कर। ठीक है। अब यही चीज हमारे पास अजीम है। ये सारा कुछ इस अजीम में भी नहीं है, तो इसलिए ये भी मुजक्कर होगा। सही। बिल्कुल माशाल्लाह। कोई सवाल आपका इससे रिलेटेड, पिछली क्लास से रिलेटेड। नहीं, फिलहाल सब ओके जी, माशाल्लाह, समझ आ रहा बहुत है। शुक्रिया आपका। जी रोल नंबर 3। यस सर। जी जनाब, आपके पास हम देखते हैं आगे कौन सी आयत आ रही है। सूरह मायदा की आयत नंबर 10 आनी चाहिए। चले कोई बात नहीं। हम्म। जी जनाब, आ जाएं आप। अस्मा का तयन करें और वजह भी बताएं कि आपको कोई भी लफ्ज इस्म क्यों लगा। भाईजान सबसे पहले अल्लवीना,
इसमें बिल्कुल मौसूला या सही। की ना, उलाई बिल्कुल। का लामी अलिफ, हम्म। और अल जहीम भी जो है वो लामी अलिफ की वजह से। हम्म। लामे अलिफ। अम, लामे अलिफ कहते हैं इसको, ये मतलब मैं इसको कैसे बयान करूँ, लामे तारीफ या फिर लामे तारीफ बिल्कुल। लामे अलिफ मेरी नजरों से नहीं गुजरा, लामे तारीफ कहते हैं इसको। हाँ जी। लेकिन अभी फिलहाल हम अलिफ लाम कह दें तो मेरे ख्याल से हम सबके लिए आसानी हो जाएगी। जी। अल क्योंकि अभी, हाँ, अभी मैं टर्मिनोलॉजी में उलझाना नहीं चाह रही ना, जी। तो इस वजह से लामे तारीफ आपने बिल्कुल ठीक है, लामे तारीफ कहा जाता है इसको। लेकिन लामे अलिफ की टर्मिनोलॉजी अगर आपने कहीं पढ़ी हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी होगी, आई थिंक मेरी हम्म। जबान से निकल गया होगा। लामे ठीक तारीफ है। से लाम और डिफरेंट नाम जी के। जी सही। अब, हाँ, उलाइका को आपने इसम क्यों कहा? उलाइका को इसमें मैंने क्यों कहा, इसमें उलाई, हाँ उलाई का इसमें इशारा है। बिल्कुल जबरदस्त। और यहाँ पे भी आयाती नाम है ना जमीर हमारे पास, जिस तरह आपने बताई। जी। ठीक है। जी। अच्छा, अब हम आते हैं कि आपके पास कौन सा वर्ड है जिसको आप हमें बताएं कि मुज़क्कर है या मुअन्नस जी। है। जी। अल जहीम, हम्म। यानी कि आग, जहन्नुम। तो हम्म। ये आता है हमारे पास गैर हकीकी में, और उसमें हम्म। समाई में जो हमारा तीसरा ग्रुप है, आग और हम्म। आग के नाम, उनमें आता है। बिल्कुल। माशाल्लाह, अब आपको समझ आ रही है चीजों की। अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताजा जी। ठीक है, और सारी पिक्चर भी आपके सामने क्लियर होती है कि कहाँ पे आपको किस तरह से पिक्चर में कोई इसम को फिट बिठाना है, नहीं बैठता तो फिर हम मुज़क्कर में डाल देते हैं उसको। जी। ठीक है। मैं कोई बस सवाल? बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो हमारा जमाइर का चार्ट था, जिस तरह से कल हमसे कुछ स्लाइड्स शेयर की गई है ना, तो जमाइर हम्म। के चार्ट को भी काइंडली उस तरह से अलग से हमसे शेयर कर दिया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल। आपके पास जितने जमायर और अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला जो हमने निकाले थे ना, उनको तीनों को अलग अलग इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे हम। ठीक है। जज़ाकल्लाह। और साजा मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग मुज़ाकरा ग्रुप में डिस्कस करें, क्योंकि ये हमारी क्लास हफ्ते में 2 दिन होती है, और आप अपना पूरा 100% से भी ज्यादा दे रही हैं, बट कमी हमारी तरफ से, हमें प्रैक्टिस की हम्म। जरूरत है। और प्रैक्टिस हम करेंगे तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह ताला आने इंशाल्लाह। लगेंगी। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से वक्त की में बरकत की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। मेरी कोशिश हम्म। कल की कि मैं किसी तरह से कोई टाइम सेट करूं और मैं इसे एडजस्ट करूं, पर हम्म। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा, बहुत जल्द। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप कुरान तो पढ़ते हैं ना रोजाना, कभी हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, कभी हम खुद पढ़ रहे होते हैं, तो जस्ट कोई एक आयत जिसमें आपने गौर व फिक्र किया हो उसका स्क्रीनशॉट लें और आप ग्रुप में डाल दें। ठीक है। इंशाअल्लाह रहमान। और हाँ, फिर आप इस पर डिस्कस करें कि मैंने इस चीज को यहाँ पे ये फाइंड आउट किया आज की आयत में। ठीक है, इस तरह सब लोग फिर उस पर बात करेंगे। देखिए, आपको मैं यहाँ पे इसी तरह प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कुरान से आप इस तरह की प्रैक्टिसेस के जरिए चीजें निकाल सकें। ठीक है। और ये वाकई आप सही कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दफा ये प्रैक्टिस क्लास होती है, तो बाकी पूरे 5 दिन कम अज कम आप लोगों की तरफ से मुझे कोई कोशिश नजर आएगी तो मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ, जी चीजें आप बिल्कुल। लोगों को समझ आ रही हैं। ठीक है ना। जी उस्ताद। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। रोल नंबर 4। जी मैम। जी, आपके सामने इस वक्त आयत मौजूद है। जी। सूरह मायदा की आयत नंबर 17। हमारे कमर, हम आपके सजेशन को सुनते हैं, जरा ये थोड़ा सा ये काम करवा लें जल्दी।
आयत नंबर 17, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। जी जी, रोल नंबर 4। जी मैम। जी, यहाँ पर आप अस्मा जो हैं वो उनका बताएं और रीजन भी बताएं कि क्यों अस्मा आप इनको समझ रही हैं। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैंने कहा फिल अर्दी। फिल अर्दी में इसम कौन सा है? इसका है ये वाली फिल अर्दी इसम है। तो आप ये कहेंगे अल अर्द इसम है, ठीक है। जी मैम। जी आगे। उसके बाद है वल्लाही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रोल नंबर 4, आप अपना माइक ऑफ कर दें, उसके बाद एंड में फिर हम देखते हैं कि आपकी क्या सूरत हाल बनती है, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है। क्या सबको आवाज क्लियर आ रही है? मैम इनकी नहीं आ रही, आपकी आ रही है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। जी आप नमाज अदा कर लें रुकमा, इंशाल्लाह फिर आप आए। स्लाइड्स कोई शेयर करने वाला है हमारे पास? इंशाल्लाह मैं ओरिजिनल स्लाइड लगा देती हूँ तो। ओके, अब आई नाजिया आवाज? परवीन, बहुत डिस्टरबेंस है। नाजिया परवीन आप अपना माइक ऑफ कर दें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद आपको दोबारा लेते हैं। रोल नंबर 5 उस्मा नासिर। जी 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 जनाब। जी। फिल अर्दी में अलिफ लाम और एक सेकंड, फिल अर्दी में अलिफ लाम कहाँ है? जी अलिफ जो शुरू से आ रहा है। सिर्फ अल अर्द में है, ठीक है। अलग में, हाँ जी, हाँ जी, वो सॉरी पूरा बोल दिया। जी अल जी अर्द। जी, जी जी। ठीक और है जी। लिल्लाही। लिल्लाही में क्या है? अलिफ लाम अल्लाह ताला का नाम में। हाँ, और नाम, इसको हम नाम कहेंगे। जी अल्लाह ताला ठीक का है। नाम है। अस्समा, अस्समावाती में अलिफ लाम। और बिल्कुल अल अर्दी, फिर आगे अल अर्दी में भी अलिफ लाम। और बिल्कुल। बैनाहुमा, बैनाहुमा का जो मा है ये जमीर है। माँ जमीर है। हाँ जी, उन नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी, उन दोनों के दरमियान ये नहीं है, ये जमीर नहीं है, इसको हुमा तमीज। जमीर है, हुमा। हु, अच्छा, हाँ हाँ जी, जो दरमियान में आ रहा है, हा, हापिश हु, सही। जी जी। नहीं नहीं, ये हुमा पूरी जमीर है। ठीक, अच्छा अच्छा, हुमा। अच्छा अच्छा, बैना हुमा। ठीक है, हुमा पूरी हम्म, जमीन। ठीक है। सही। और फिर आगे है वल्लाहु में जैसे अल्लाह हु। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर है शई इन, हम्म, तनवीन है इसमें, और कदीरुन में तनवीन है। बिल्कुल। अब अस्समावात और अल अर्द आपके पास हैं, आप जिन्स के एतबार से इनका तयन करें। जी ये इसमें असमावात आसमान है, ये मुतफरिक अस्मा में आ रहा है, मुअन्नस है। और हम्म अल जो है ये भी मुतफरिक में आ रहा है, ये भी मुअन्नस है। हम्म। यानी कि गैर हकीकी के समाई के जो ग्रुप्स हैं उसमें जो मुतफर्रिक अस्मा है उसमें ये दोनों मौजूद हैं, जी ठीक है। अच्छा, जी आप जी। ये अगर ये पूरी तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो टेबल आपके जहन में बैठता जाएगा। सही, हाँ सही जी, है। ठीक है। हाँ ये बस शॉर्ट कर दी, ठीक है, वैसे सही बात है, वो फिर ज्यादा रिमाइंडर हाँ, वो रहेगी। आपके जहन में बैठता रहेगा और जो दूसरे आपको सुन रहे हैं ना उनके भी सही जहन में आपकी वजह से बैठता जाएगा। सही, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी। उस्मान नासिर कोई सवाल? नीचे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह। रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 हमारे पास मौजूद नहीं है। रोल नंबर 7 जी शहनाज खातून। जी आपके पास है वर्ड।
आपके पास आयत है, पहले उसको बताएं कि उसमें क्या क्या आपके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बिही हमारे पास आया है, लेकिन मैं पहले आप सबको बता दूं कि ये उस्मानी मुसहफ है, तो इसमें ये चीज नहीं दी गई। हमने इससे पहले जो बिही आयत नंबर 14 में देखा था, उसमें आपने ये देखा होगा कि जेर आई भी है वाहिद मुजक्कर से पहले, तो उसके नीचे हमने खड़ी जेर देखी थी। ठीक है, उस्मानी मुसहफ में ये अशकाल नहीं होती हैं। बरे सगीर पाको हिंद में जो मुसहफ इस्तेमाल होता है, उसमें ये जमीर की, वाहिद मुदक्कर की जमीर की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। और यकीनी तौर पर आपने भी कुरान पाक जो पढ़ रहे होते हैं उसमें ऐसी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अब या तो फिर मैं ये करूंगी कि मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं कि आप लोग कम अज कम कुरान से 3 मिसालें, चार हमारे पास टोटल 4 शक्लें हैं, सबकी एक एक मिसाल मुज़ाकरा ग्रुप में अपने अपने एतबार से पढ़ते हुए सेंड करें। ठीक है, और इसका रीजन भी बताएं कि ये क्या है और किस तरह हुई है ये शक्ल इसकी। ठीक है जी, ये कर लें, आपके पास पूरा हफ्ता है जी। रोल नंबर 7, शहनाज खातून, आप बताएं इसमें कौन से आपके पास अस्मा आ रहे हैं। ये आयत नंबर 13। जी जी। अच्छा, यहाँ पर बिही, बिही इसमें पूरा जमा, इसम है। इस पे जो हा है, जी बिल्कुल सही। इस, इसमें जमायर। अच्छा, हम्म फिर अल अव्वलिन, बिल्कुल अलिफ लाम की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। अब यहाँ पे मैंने एक इसम आप लोगों को बता दिया है, इंशाल्लाह ताला आगे चल के आप ये भी देखेंगी कि ये इसम भी आपको समझ में आ जाएगा, जबकि ना इसके ऊपर अलिफ लाम लगा है और ना इसके ऊपर तनवीन है। ठीक है, लेकिन हम इसका माना देखते हैं तो इसका माना होता है रस्म, और ये एक इसम है। अब इंशाल्लाह ताला जब हम चीजें पढ़ेंगे तो आप खुद भी इन चीजों को इसम क्यों है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास ये वर्ड है, आप मुझे ये बताएं कि ये जिन्स के एतबार से मुजक्कर है या मुअन्नस है। आ, ये मुअन्नस होगी, अलामती मुअन्नस। अलामत ही मुअन्नस, किस वजह से, क्या अलामत है इसमें। इसमें गोलता है आखिर में। बिल्कुल। अच्छा, रोल नंबर 7, आपका कोई सवाल है, यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर है। जी, अभी तक क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रोल नंबर 8 मौजूद नहीं, अच्छा रोल नंबर 9 भी मौजूद नहीं है। रोल नंबर 10, गुलशन शुजा साहिबा। हाँ जी। जी, आप प्लीज बताएंगी कि कौन से अस्मा आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। अभी ये जरा मुझे आयत नंबर बता दो, तो कैसे मुझे आयत ही नहीं नजर आ रही। आयत नंबर मुझे बता दें तो मैं उधर से। आयत नंबर कौन सा है बाजी? जी जी, मैं बता रही हूँ आपको, ये आयत नंबर हमारे पास है, तो मुझे भी आयत नंबर देखना पड़ेगा कौन सा है मेरे पास। सूरत माइदा में क्या है? आयत नंबर है 33, सूरह सबा। सूरह सबा की आयत नंबर 33 है। सूरत सबा की। गुलशन शु- जी, गुलशन शुजा साहिबा, आपका माइक बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, आप म्यूट कर लें। बट ब- अच्छा, जिन जिनके पास जो आयत आई है वो नहीं कर पाए हैं, तो मैं 2-3 आयत ग्रुप में शेयर करूंगी, सिर्फ वही लोग उसका मुझे तज्जिया करके बता देंगे कि इसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, मैं उनका नाम लेके ग्रुप में शेयर करूंगी जो इस वक्त अपने स्क्रीन की वजह से नहीं कर सके। रोल नंबर 11, शकीला यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने आयत वालेकुम सलाम। आपके सामने आयत मौजूद है। जी जी।
جی آپ اسما کا تعین کریں جی اور ٹیچر. وجہ بھی بتائیں. جی بسم اللہ. باللہ میں اسم اللہ، بالکل. اور لہو میں ہو ضمیر، ہوں. اندادن میں تنوین اسم، بالکل. الندامہ میں غیر حقیقی علاماتی مؤنث نہیں ابھی آپ علامت بولتا. ابھی آپ نے صرف اور صرف اسما کا تعین کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی جی شکریہ. اسما صرف اسما بتانے ہیں، یہ جعلنا کیا میں ہے، نا. کیوں ہے، یہ بعد ہم دیکھیں. جی اچھا. جعلنا میں نا ضمیر، بالکل. اس سے پہلے ایک اور اسم چھوڑ گئی ہیں آپ. الف لام العذاب، بالکل. الاغلال اسم، الف لام. بالکل. 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 الذین اسم موصولہ. زبردست. اب ان کے پاس کیا ورڈ آ رہا ہے؟ جی جس طرح آپ نے پہلے ہی اس کو ڈسکس کر لیا کہ علامتی مونس ہے، گول تا جو ہمارے پاس علامت ہے، اس کی بنا پر ہم اس کو مونس ڈکلیئر کریں گے، اور اس کا معنی بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ کوئی ایسا اسم نہیں ہے جو کسی مذکر نے اپنایا ہو. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جی آرام سے علامتی مونس جانتے ہوئے ہم اس کو دے سکتے ہیں کس میں؟ مونس میں. ٹھیک ہے شکیلہ یوسف، آپ کو مؤنث سمجھ میں. آ رہی ہے ساری چیزیں؟ جی الحمد للہ ٹیچر، ابھی تک تو آ رہی ہیں. اب ہمارے پاس ہے رول نمبر 12. جی رول اچھا نمبر جی. 12 آپ کا نام؟ تنزیلہ کو سر. جی اچھا یہ یہاں ان پہ کا سب سے پہلے ہم سب سے پہلے آپ اسم جو ہیں وہ ڈھونڈ لیں اور اس کا جی. ریزن بھی بتائیں. اچھا ان کا گلشن شجاع کا مائک جو ہے نا وہ بند کر دیں، آپ کے پاس ہے آپشن. چلیں. اچھا جی. وہ ارسلنا نون الف نا کی وجہ سے. بالکل. نون الف نا کیا چیز ہے؟ نون الف نا کیا چیز ہے؟ یہ ضمائر میں سے ہے. بالکل زبردست، ماشاء اللہ. جی. جی اب عربی یا الف لام کی وجہ سے. بالکل. بالکل. پھر آگے فانزلنا نا کی وجہ سے یعنی ضمیر کی وجہ سے. جی پھر آپ کہیں گی نا ضمیر. ٹھیک ہے. نا ضمیر، ٹھیک ہے جی. جی نا ضمیر کی وجہ سے. پھر السما الف لام کی وجہ سے. پھر ما زبردست، ان، جی ما ان تنوین کی وجہ سے. اچھا یہ ماشاء اللہ. فاسقینا کو منہ ہو ہاں ہائے ضمیر کی وجہ سے. بالکل واحد مذکر کی. اب اس کو بولنے کی پریکٹس کریں. یہ ہو ضمیر جی ہے جو واحد مذکر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. بالکل جی. یہ واحد مذکر کی ضمیر. پھر انتم اچھا کا. اس کو صرف ہائی لائٹ کریں، معذرت، صرف ہو جو ضمیر یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہے صرف اس کو ہائی لائٹ کریں. جی اچھا. اب آگے جو ہے یہ ہے انتم کی جو ہے ہم کم تم یعنی ضمیر کی وجہ سے. انتم کی، بالکل پورا انتم ضمیر ہے ہمارے پاس. یہ لہو ہائے واحد مذکر کی ضمیر ہے. زبردست. اگر ہم اپنے مصحف میں پڑھتے تو کیا جی. یہ حرکت ایسی ہی ہونی تھی؟ لہو نہیں، اس کے اوپر الٹا پیش آنا تھا. بالکل. اور پیچھے ہم نے قمو ہو میں جو دیکھا تھا اس کے اوپر بھی الٹا پیش آنا تھا. اس کے اوپر بھی الٹا پیش آنا تھا. وجہ؟ نہیں میرا خیال ہے نہیں آنا تھا. ہاں یہ وجہ کیونکہ نہیں ابھی. جی نہیں بالکل ابھی ہم نے کیونکہ اور ہم ساکن نے آ گیا. ہاں لیکن ہم نے وجوہات جو دیکھی تھی الٹے پیشی وہ دو تھی، یا تو اس ضمیر سے پہلے زبر آ جائے یا اس ضمیر سے پہلے پیش آ جائے. بالکل ہاں جی. کوئی ٹھیک اور ہے نا. حرف ساکن ہو تو پھر نہیں آئے گی. پھر نہیں. اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس قمو ہو میں جی
कुमुह में बहुत ये सारे, सीधी पेश नहीं आनी, बिल्कुल। बिल्कुल, इसीलिए इस और वजह से लघु में क्योंकि हमारे पास जबर है तो ये उल्टी पेश आनी है, पेश आनी है, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा ही है अब हम जी। देखते हैं कि आपके पास कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जिन्स का तयन करना है, ठीक है। जी बिल्कुल। जी, आपके पास अर्रियाह है। जी, अर्रिया, अच्छा, ये अगर पीछे से हम देखें तो ये ना तो वो है मोनसे हकीकी भी नहीं है हम्म, और इसमें कोई अलामत भी मौजूद मौजूद नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर हम आगे देखते हैं कि ये मोनस आपको है। टेबल शो करें, टेबल शो करें आपको? नहीं, मेरे पास है, रिटन फॉर्म में है। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। जी, फिर जी, फिर हम आगे जाते हैं तो मोनस से समाई को अगर देखते हैं तो ये समाई में आ जाता है क्योंकि अर्रिया जो है ये हवाओं का नाम है, हवा है। जी जी। फिर और अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें हवाओं जी, के नाम को अहले जबान मुअन्नस कहते हैं। मोनस कहते हैं, जी बिल्कुल। तो तो आपने ये तज्जिया किया कि आपके पास अब रियाह जो है वो मुअन्नस है। जी, ये मोनस से समाई के ग्रुप में आ जाएगा। जी, और बेसिकली मुअन्नस से समाई का ग्रुप किससे बिलोंग करता है? लफ्जी या गैर हकीकी मुअन्नस से। लफ्ज़ी या गैर हकीकी मोनस से, ठीक है। क्योंकि अच्छा, पहले हमारे पास हकीकी था, फिर गैर जी, हकीकी या लफ्जी, उसके बाद इसकी दो ब्रांचेस और निकली थी, एक थी अलामती, एक थी समाई, ठीक है ना। बिल्कुल, जी। तो ये गैर हकीकी की ही दो किस्में हैं। गैर हकीकी की ही 2 किस्में हैं, हाँ, अलामती एक भी है और समाई भी। समाई भी, बिल्कुल, ठीक है। हुँ, तो जब भी ठीक, आप अलामती या समाई मुअन्नस डिक्लेयर करें तो आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि ये हुँ, वो किस्में हैं जो गैर हकीकी मुअन्नस की किस्में हैं। बिल्कुल। अच्छा, इससे भी हम कहेंगे कि ये गैर हकीकी मोनस है, लेकिन हम्म, ये समाई में जाता है, यानी जी, ये अलामती, गैर हकीकी मुअन्नस में समाई मुअन्नस से ताल्लुक रखता है ये इस्म, ठीक है। बिल्कुल, जी। अच्छा, ठीक है, आगे क्लियर है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अस्समा। अस्समा, अस्समा जो है ये मुतफ़रिक़ अस्मा में आ जाएगा, यानी हम्म, गैर हकीकी, जी जी। इसका गैर हकीकी से ही तल्लुक है, लेकिन ये हम्म, मुअन्नस से वो उसमें समाई में फ़ाल करेगा और मुतफ़रिक़ अस्मा में आएगा। जबरदस्त। मुतफरिक अस्मा क्या होते हैं? हमने मुतफ़रिक़ मुतफरिक अस्मा का तयन कैसे किया? मुतफ़रिक़ अस्मा जो है यानी उसमें ज़मीन आ गई, आसमान आ गया, यानी जिसका कोई जोड़ा मौजूद नहीं है। मतलब जिसका कोई मुतफरिक अस्मा से मुराद वो होती है कि जब हमारे उलमाए दीन ने कुरान में गौर फिक्र किया तो ग्रुप तो उन्होंने निकाल लिए, ठीक है, हुँ, लेकिन कुछ जी, अस्मा ऐसे थे जिनका किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था, ना हवा के नाम, ना शराबों के नाम, ना जुफ्त आज़ा, कोई ग्रुप में नहीं फॉल करते थे, लेकिन फिर भी हुँ, उनको मुअन्नस कहा गया, ठीक है ना। हुँ, तो ऐसे उन्होंने अस्मा का मुतफरिक अस्मा के तौर पर एक अलग ही ग्रुप बना लिया बिल्कुल, जो तो किसी वो भी ग्रुप में। हाँ जी, बिल्कुल। अब आपके पास है माँ, पानी। जी, पानी। अच्छा, पानी जो है ये भी गैर हकीकी है और मुअन्नस से हम्म, समाई में ही आएगा और ये आ जाएगा शराब के नाम, यानी पीने से इसका ताल्लुक है। ना, पीने से ताल्लुक पे ग्रुप नहीं बना, शराब या शराबों के नाम, ठीक है। शराब या शराबों के नाम, ठीक है। हम्म, तो वो फिर किसमें आएगा? ये तो आप बताएं। अस्समा, मुतफ़रिक़ अस्मा में हमारे पास सूरज, ज़मीन, आसमान। अच्छा, फिर नहीं, मेरे तो फिर ज़हन में नहीं आ रहा ये क्या होगा? अच्छा, मेरे ज़हन में यही था कि ये शराब यानी शराब इसका ताल्लुक पीने से है। हम्म, हुँ, अगर हम ये कहते हैं ना कि हर वो इस्म जिसका ताल्लुक पीने से है, ठीक है, हुँ, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि या तो शराब होगा या शराबों के नाम, ठीक है तो ना। फिर ये और मुज़क्कर में आ जाएगा। जी, जी। बिल्कुल मुजक्कर में आ जाएगा, ठीक है, यानी ठीक है, इसमें ना तो कोई अलामत मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और ना ही ठीक ये है, किसी ग्रुप में है, ना मुतफरिक अस्मा में है, ठीक है। तो बिल्कुल, हम इसको जी, आराम और सुकून के साथ मुजक्कर के बॉक्स के अंदर डाल देंगे।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक अब है। आपको समझ आई कि किस तरह हमने प्रैक्टिस करनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब पढ़ रहे होते हैं क्लास में फिर तो चीजें आ रही होती हैं जहन में, लेकिन हम्म। बाद में फिर वही जो है ना वो सारा ब्लैकआउट वाला सिस्टम हो जाता है। अल्लाह हाँ, ताला बस। क्योंकि वजह वजह यह है कि मैं छोटे छोटे होमवर्क आपको नहीं दे रहे, ठीक है? हम्म। इसकी जी शायद रीजन ये है कि पूरा इंशाल्लाह। हफ्ता निकल जाता है ना, तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा, अगर आप लोग सब एग्री कर रहे हैं कि मैं छोटे छोटे होमवर्क आपको दूं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और हम करके उसमें सेंड करें ताकि पूरा जो है ना वीक वो नज़रों से चीज़ें जो जब भी कोई सेंड करेगा ना ओझल तो ना हो। हाँ, गुज़रेंगी तो फिर रिवाइज़ होता जाएगा साथ-साथ। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ताला ये सारा सेटअप बनाती हूँ। अच्छा, मारिया कमर, बहुत शुक्रिया तंजीला, आपका रोल नंबर 12। मारिया कमर, आपका कोई सजेशन आप कहना चाह रही थी? जी मैम, मैंने यही कहना था कि जो आपने कहा कि आप ना कोई आयात या कुछ ऐसे ना हमें ग्रुप में भेज दिया करें, ताकि फिर हम एक ही काम जब सब करेंगे ना, उसमें फिर अगर कोई गलती होगी तो फिर हमें एक दूसरे को मतलब वो समझने का भी मौका मिल जाएगा ना। अगर सब अपनी अपना करेंगे तो फिर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा कि हमारी क्या अच्छा, अगर गलती मैं है। आपको, तो जी मारिका कमर, अगर मैं एक आयत दे देती हूँ, उसमें आपने सब ढूंढ लिया, आपसे मैंने जो सवाल उस आयत से रिलेटेड किया, आपने जवाब दे दिया, ठीक, फिर बाकी क्या करेंगे? नहीं नहीं, सब अपना अपना करें ना, 3 4 आयतें आप दें, लेकिन इसमें फिर गलतियां मैं होंगी तो सिर्फ वो फिर देखें, मैं सिर्फ ये करूंगी कि मैं आपको एक पैकेज बता दूंगी कि आप लोग कुरान पाक पढ़ते हुए ऐसी आयत देखें जिसके अंदर ये मौजूद है, ठीक है? जी। तो नहीं, इसके बाद जैसे आप मैम लोग ये अपनी अस्मा है, आयतें, जी में भेजे ना कि ये अस्मा है, जैसे अस्मा है नाम है, जैसे ये मुजक्कर मोनस, ये फिर आप ही हमें भेजे ना कि भाई ये आप देखें कि किस में फॉल कर रहे हैं, किस जिन्स में फॉल कर रहे हैं। हम्म। अच्छा ठीक है, इसका पूरा एक है ना सेटअप बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं ये चीजें करती हूँ, ठीक है? हाँ, बच्चे आप ये जो इसमें है ना, अस्कई ना कुमुहू, जी तो जी इसमें जो ये ना है, ये जो जी खड़ा जी ना, तो ये जी जी, जमीर नहीं है। ये जमीर है, लेकिन इस वक्त जो उस्मानी मुसहफ है आपके सामने, उसमें ये जो इस तरह लिखा हुआ है ना, तो उसको हो जी। सकता है कि लोग नहीं वो कर पा रहे, इसलिए मैंने इसकी तरफ ज्यादा नहीं तवज्जो दी, अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक है? जी गुलशन शुजा, आपका माइक बिल्कुल भी ऑन आप ना करें, क्योंकि कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप ग्रुप में अपनी बात कह सकती हैं। अच्छा नसीम अख्तर, आप बताएं। सजा, मैं जस्ट ये सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे हम्म आप तो माशाल्लाह मतलब आपको ये बात मालूम है कि हमें कुरान की कौन सी सूरतों की कौन सी आयतों में जो है वो ज्यादा जमायर और इस्म और ये सब चीजें पहचान के लिए मिल सकती हैं। अगर हम्म आप हमें सिर्फ इस तरह से होमवर्क दे दें कि आप लोगों हम्म का ये होमवर्क है, ठीक है, इस सूरत की ये आयत जो है वो आप लोगों ने होमवर्क में कर कर लानी है, तो अगर वो हम्म मैक्सिमम 11 आयत हो तो जैसे जो हम्म नंबर 1 आयत होगी वो रोल नंबर 1 कर ले, बाकी मतलब इस तरह तरतीब से सबके हिस्से में हम्म डिफरेंट आयत भी आ जाएंगी और लेसन भी ज्यादा हमारा कवर होगा और सीखने का मौका और समझने का मौका ज्यादा मिलेगा। और क्योंकि अगर हम खुद से आयत ढूंढें तो मुझे लगता है कि शायद हर आयत में हमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं नहीं, मिलेंगी। देखिए, मेरी बात सुना है नसीम अख्तर, मैं आपसे आयात नहीं ढूंढने का कहूंगी, ठीक है? मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, जिस तरह मैंने आपको आज छोटा होमवर्क दिया कि हु जमीर की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं कुरान पाक हिफ्ज मैंने नहीं किया हुआ, ठीक? मुझे हम्म। पूरा वीक, बल्कि पूरे पूरे दिन और रात लगती है आप लोगों के ये प्रैक्टिस आयात को ढूंढने में, सही? हम्म। कि जहां पर एक एक मेरे ध्यान में आप लोगों की स्ट्रेंथ पता होती है मुझे कि 12 लोग हैं, ठीक है? मैं 16 आयात ढूंढती हूँ, उन आयात में एक एक चीज एक एक बंदे के लिए प्रैक्टिस इसमें है या नहीं, मैं वो सब ढूंढती हूँ। जब आपकी टीचर पूरी 16 आयतें ढूंढ सकती है, तो आप एज ए स्टूडेंट क्या एक आयत नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं सजा, मेरे लेकिन दिल में ये थोड़ा सा बात नहीं थी देखिए, मुझे। थोड़ा सा अगर आप, हाँ, आप इससे जुड़ेंगे ना तो आपको अज खुद नजर आएंगे, यकीन करें, मेरा यकीन माने इस यकीनन बात यकीनन कि यकीनन ऐसा ही आपको है। खुद चीजें, हाँ, आपको खुद चीजें नजर आएंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैंने आज, जैसे मैंने होमवर्क दिया कि मुझे हु जमीर जो आज हमने अशकाल इसकी डिफरेंट पढ़ी हैं, आप अपने मुसहफ से मुझे इसकी
हर एक की एक एक मिसाल, दो दो मिसाल ढूंढ दें, कोई मसला नहीं। और जरूरी नहीं कि पूरी 4 की 4 ही आप मुझे ढूंढ के दें, ठीक है? सही है ना? जी मतलब सजा, आपको जितनी जी मिल जी। रही है आप ढूंढ के दे दें। सही। और सजा, आपका आपका पैटर्न बेहतरीन है, मेरे इल्म में हरगिज ये बात नहीं थी। मुझे लगा कि ये शायद हमारे कोर्स का एक हिस्सा है, और एक मतलब इसके लिए एक पहले से जो वो तहकीक की भी है और आपके पास आयात मौजूद होती हैं। ये मेरी सोच थी, मुझे ऐसा बिल्कुल हम्म। मालूम नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और हम ये जरूर हम्म। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपको हम जरूर हम्म। अपनी प्रोग्रेस दिखाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। देखिए कुछ भी नहीं, आप मोबाइल में कुरान पाक अब तो मेरे ख्याल से हर किसी का होता है, ठीक है ना? आप उसी को रीड कर लें, उसी को सर्च भी कर सकते हैं कि सिर्फ एक भी ही लिख कर देखते हैं, आपको कितने हू जमीर के कितनी सारी आयत मिल जाएंगी, ठीक है ना? अगर आप इस तरह सर्च करना चाहें तो ये भी सर्च आप कर सकते हैं। और एक ऐप है तंजील डॉट नेट करके। मेरी आवाज आ रही है? जी जी साजा, आपकी आवाज आ रही है, जी आप जी। बताइए। तंजील डॉट नेट करके, शायद अभी उस साइट में कोई इशू है या नहीं, मुझे नहीं आइडिया वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं। उसमें आप जो भी वर्ड, जो भी चीज लिखती है ना, अगर आप सिर्फ वो जमीर लिख देती है ना, जमीर ना लिखेगा, सिर्फ उसको बना दीजिएगा, तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें वो सब आपके पास हाईलाइटेड होकर आएंगी, ठीक है? मतलब पका पकाया खाना मिलता है हमें उसमें। हाँ, अगर आप अलिफ लाम लिख देंगी ना, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। सही। सजा, तो अगर देखिए आप मुझे हमें लिंक सेंड कर सके, वरना मैं ये है कि प्ले स्टोर से खुद देख लेती हूँ इंशाल्लाह रहमान, आसानी से मिल जाएगी। बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आप जरा उसको देखिएगा कि उसमें वो थोड़ी सी अभी ब्लॉक हुई भी है या थोड़ी सी उसमें रिस्ट्रिक्शंस हुई भी हैं, तो शायद अंडर कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है कुछ। तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैंने यूज की थी पहले, लेकिन अब मैंने यूज की तो मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन और भी बहुत सारी एप्स होती हैं ऐसी, जिसमें आप कोई वर्ड डालें या गूगल कर लें, बहुत सारी आसानियां हैं, ठीक है ना? लेकिन मैं देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े काम आपको नहीं दूंगी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि फिलहाल मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये मिसालें दे दें। इसके बाद जो आयात हैं, मैं एक दो आयात दे दूंगी कि इसमें से मुझे सिर्फ ये चीज ढूंढ के दें आप, ठीक है? कुछ मैं आपको चीजें बताऊंगी कि मुझे ये चीजें जिस आयत में हो वो आयत ढूंढ के दे दें। मतलब कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको लेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमेशा आयतें आप ढूंढेंगे। सही है ना? तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को ढूंढेंगे, इन सारी चीजों को समझेंगे। मेन मकसद सिर्फ इसका ये है कि आपने अभी तक जो पढ़ा ना, वो उसको इम्प्लीमेंट आप अपने तौर पे करें। देखिए मैं कराती हूँ उधर, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब टीचर करा रही होती है तो स्टूडेंट को सब समझ आता है, हाँ ये तो ठीक है, ये भी समझ आ गया होगी। लेकिन जब वो खुद लेके बैठता है ना, तो वो थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जब आप आयतों का पढ़ें, कुरान पाक रिसाइट करें, तो आपको खुद भी ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो जब मैं आपको होमवर्क दूंगी कि भाई मुझे ये आयत ला कर दें, तो डेफिनेटली आप पढ़ेंगे, आप गौर करेंगे, फिर आप मुझे ला कर देंगे ना, ठीक है ना? तो ये मेरा सेटअप ऐसा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, होमवर्क थोड़ा 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 आता जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहुत छोटा होगा, आपकी तबीयत पे गिराएं आपको, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम आपको लग रहा है इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल, कोई बात? बाजी, मैं गुलशन बात कर रही हूँ। जी जी। बाजी, हम शामिल हो। मैंने एक दफा ग्रुप में टच किया था, तो पता नहीं किस किस की आवाज आई थी, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे हम ग्रुप में एक दूसरे से लिंक करेंगे। अच्छा, ये इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट आपकी इस सिलसिले में हेल्प करेगी। अच्छा, और सिर्फ एक काम कीजिएगा, मुज़ाकरा ग्रुप में आज जो अपने माइक के प्रॉब्लम की वजह से नहीं पार्टिसिपेट कर सके, मुझे सिर्फ वो अपना मैसेज एक मुज़ाकरा ग्रुप में कर दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे दूसरी क्लास में, आने वाली क्लास में आयत नंबर गुलशन कौन? शुजा, आयत नंबर मैं आयत आपको नंबर खुद ही उस वक्त दूंगी, आयत मैं खुद उस वक्त आपको दे दूंगी। लेकिन आप लोग सिर्फ मुझे बता दीजिएगा किन लोगों ने नहीं किया। माइक ऑन ऑफ कर दें, गुलशन शुजा साहबा माइक ऑफ कर दें अपना,
جی انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی کلاس بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسم کے بارے میں 4 باتیں ہمیں لازمی معلوم ہونی چاہیے، ورنہ ہم اسم کو صرف جنس جاننے کی بنا پر جملے میں صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی کلاس میں ہم ایک اور پہلو لائیں گے، اور جب ہم پریکٹس کریں گے تو ہم جنس بھی دیکھیں گے، اسم کو پہچاننے کی علامتیں بھی دیکھیں گے، معنی بھی دیکھیں گے، اور اپنا دوسرا ایک پہلو بھی دیکھیں گے کہ ہم اسم کے بارے میں مزید کیا جان سکتے ہیں. ہر پہلو بہت دلچسپ ہے. انشاءاللہ تعالی میری اور میری مینجمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ اس طرح کی سلائیڈز بنائی جائیں جو آپ کو ایزیلی، آپ جس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، پارٹیسپیٹ کر سکیں، اور میں ایک ورڈ استعمال کرتی ہوں، انجوائے کر سکیں، کیونکہ میں بہت انجوائے کرتی ہوں جب کوئی چیز میں نے پڑھی ہو، میں نے سمجھی ہو، میرے سامنے آیا اور مجھے سمجھ آ جائے قرآن، تو میری قلبی کیفیت بہت ہی ایک الگ ہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ ورڈ استعمال کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی آپ سے آنے والی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. حشاش بشاش رہیے، خوش رہیے، اور دعائیں کرتے رہیے. جزاکم اللہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.